Good morning, students. Good morning, sir. We will start from the same topic we were discussing. Do you remember what we were discussing? Do you remember what we were discussing in last class? Yes, sir. लूम के पार्ट्स बारे में सर डिस्कशन कर रहे थे. लीज रोड गया था, उसके बाद टेम्पल से स्टार्ट. So, just to remind you, we were discussing important loom parts. And before that, we have taken definition of weaving woven fabric, weaving machine or loom. Then we have taken classification of looms, shuttle looms and shuttle-less looms, and their further categories. After that, we have taken classification of motions of loom, primary, secondary, and auxiliary motions. Primary like shading, picking, and beating. Secondary, let off, tack up. And in auxiliary, we have covered 4 or 5 different type of motions like warp protector motion, warp stop motion, weft stop motion, drop box, break. So all these things we have done in different motions of loom, which are categorized into 3 categories: primary, secondary, and auxiliary. After that, we have taken important terms and important parts of loom, which are most common in most of the shuttle looms. And in that, we have taken many terminologies like warp, weft, and then different parts. So we were at the lease roads, and because due to lack of time, we have gone a little bit faster. That's why I'm just repeating it again. Lease roads, on the loom, we are using 2 lease roads, which are inserted between the 2 layers of warp threads. The division of warp threads into 1 and 1, 2 and 2, and so on is termed as lease. लीज का मतलब है वाप को 1 and 1 या 2 and 2 में सेपरेट करना, डिवाइड करना, और उस प्रोसेस को हम लीज बोलते हैं. एंड विद द हेल्प ऑफ the roads which we are performing, these leasing function are known as lease roads. Generally, the 2 roads passed between 2 divisions of the warp threads are called lease roads. तो उन roads को हम lease roads बोलते हैं. Lease roads are placed between the back hild and the back rest, but nearer to the back rest. यहाँ पर हम उसकी लोकेशन बता रहे हैं लूम के ऊपर. पहले हमने डिफाइन किया लीज को, फिर हमने डिफाइन किया लीज रोड्स को. अब उसकी प्लेसिंग क्या होगी लूम के ऊपर, उसकी लोकेशन क्या होगी? दैट इज इन बिटवीन बैक हिल्स एंड लीज रोड्स. सॉरी, बैक हिल and the back rest. You already know these 2 parts which we have taken in the passage of loom. Back rest कहाँ पे होता है? Where back rest is situated on the loom? warp beam के ऊपर. रिवर्स बीम के जस्ट ऊपर की तरफ होता है, जो कि थ्रेड्स को गाइड करने का काम करता है एंड ऑल्सो प्रोवाइड इक्वल टेंशन. थोड़ा टेंशन भी प्रोवाइड करने में हेल्प करता है. तो जो बैक रेस्ट है वो एक रोलर फॉर्म में भी होता है या प्लेट फॉर्म में भी होता है. जनरली वी आर यूजिंग इन अ रोलर फॉर्म, सो इट इज ऑल्सो नोन एज बैक रोलर. तो बैक रोलर और हिल फ्रेम्स जहाँ पे हैं, उन दोनों के बीच में कहीं लीज रोड्स होती हैं एंड इट इज नियरर टू द बैक रेस्ट. जनरली ये अगर डिस्टेंस देखेंगे हम, तो इसकी जो डिस्टेंस है बैक रेस्ट के से कम होती है एज कम्पेयर टू हिल फ्रेम. बैक रेस्ट के ज्यादा नजदीक होती हैं जो आपकी लीज रोड्स होती हैं. लीज रोड्स के बेसिकली 3 फंक्शंस हमने यहाँ पर लिए हैं. इट प्लेसेस द वार्प थ्रेड्स इन अ सीक्वेंस.
same as reed and hill frame is doing the same function. The same function is once again done by leads rods. वार्प थ्रेड्स को सीक्वेंस में करता है ताकि वार्प थ्रेड्स आपस में एंटेंगल नहीं हो. It helps to detect the broken ends. The same function is done by hill frame, which is done by leads rods. We are detecting the broken threads, broken warp threads here at this stage. अगर यहाँ भी ब्रेक है तो हम यहाँ पे भी वॉच कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कौन सा वार्प थ्रेड ब्रेक हुआ है. एंड इट फॉर्म्स द लास्ट एंड ऑफ द डिवाइडेड वार्प. जो शेड बन रहा है, डिवाइडेड वार्प हो रहा है ड्यू टू हिल फ्रेम्स, लिफ्टिंग एंड लोअरिंग ऑफ हिल फ्रेम्स, तो उसका जो लास्ट एंड होगा, शेड का जो लास्ट एंड होगा, शेड इस तरह से फॉर्म होता है लाइक दिस. यहाँ से ये फ्रंट से होके ये आता है हाइट तो फुल हाइट एंड देन कमिंग अगेन टू दिस. तो यहाँ जो इसका लास्ट पॉइंट है वो लास्ट पॉइंट फॉर्म होता है लीज रोड्स के. यहाँ पे लीज रोड्स इज एक्चुअली वर्किंग एज अ स्टार्टिंग पॉइंट. यू कैन से फ्रॉम दिस साइड, यू से इफ यू सी दिस इज स्टार्टिंग पॉइंट, और अगर हम शेड का देखें तो शेड का ये लास्ट एंड हो गया है और शेड का फ्रंट एंड आगे की तरफ होता है. तो ये जो लास्ट एंड है शेड का वो फॉर्म होता है लीज रोड्स के. यहाँ से ये 3 इंपॉर्टेंट फंक्शन है लीज रोड्स के. और लीजिंग हम इसलिए करते हैं ताकि जो वार्प थ्रेड्स को हमने 1 बाय 1 अलग कर लिया है, तो एट द टाइम ऑफ शेड हमें क्या करना है, वार्प थ्रेड्स को लिफ्ट या लोअर करना है. तो अगर हमने उनको पहले से सेपरेट नहीं कर रखा है और वार्प थ्रेड्स किसी भी कारण से अगर एंटेंगल्ड हो गए हैं या अपनी पोजीशंस चेंज कर ली हैं, तो जब हम वार्प थ्रेड्स को लिफ्ट करेंगे तो वो ब्रेक हो जाएगा. इसलिए हम लीजिंग के थ्रू उनको इंडिविजुअली सेपरेट कर देते हैं. एक ऊपर होता है, एक नीचे होता है लीज रोड के, फिर अगला वापस ऊपर, फिर नेक्स्ट उसके नीचे. यानी कि 1, 3, 5, 7 सब ऊपर हैं, तो 2, 4, 6 सब उसके नीचे हैं. लिफ्टिंग प्लान जो है या रीड जो है वो लिफ्ट एंड लोअर अकॉर्डिंग टू पेग प्लान होती है. प्लेन व्यू में एक हिल अप है तो एक हिल डाउन होती है, बट डिपेंडिंग ऑन द व्यू more than one hill can be lifted and more than one hill can be lowered. बट लीज रीड्स में क्या होता है, एक थ्रेड ऊपर, एक थ्रेड नीचे, एक थ्रेड ऊपर, एक थ्रेड नीचे करके हम उनको सेपरेट करते हैं ताकि वो वापस एंटेंगल्ड नहीं हो. और एंटेंगल्ड अगर होंगे तो वार्प थ्रेड्स ब्रेक होने के चांस रहेंगे शेडिंग के टाइम पर. उसको अवॉइड करने के लिए हम लीजिंग करते हैं. कैन एनीबडी टेल मी, आई थिंक फ्रॉम डिप्लोमा स्टूडेंट्स, कि हम लीजिंग कैसे करते हैं और कहाँ करते हैं, किस डिपार्टमेंट में करते हैं लीजिंग? ये लीज रोड्स हम वार्प थ्रेड्स को डिवाइड करके उसके डिवीजन में जो इंसर्ट कर रहे हैं, ये कैसे किया है? कि वार्प थ्रेड्स की तो लूम पे तो एक पैरेलल शीट होती है, तो ये हम कैसे करते हैं लीजिंग? लीज रोड्स कैसे इंसर्ट करते हैं, किसी को पता है? Sir, after warping, नॉट इवन आफ्टर वार्पिंग, ड्यूरिंग वार्पिंग. beaming के time. Yeah, during warping अपन करते हैं. We have a particular read on warping machine. Regular students थोड़ा ध्यान से सुने, क्योंकि अभी आपने वार्पिंग नहीं पढ़ा है तो आपके लिए एकदम नया है. वार्पिंग जब हम करते हैं तो वार्पिंग पे 2 तरह की रीड हम यूज करते हैं. वन इज सेक्शन रीड, जिसको वी रीड भी बोलते हैं. डिप्लोमा स्टूडेंट को रिकॉल होगा, उन्होंने पढ़ा होगा, सेक्शन रीड या वी रीड होती है. और एक होती है लीज रीड. Have you studied about lease read, diploma students? Yes, sir. Yes. So what is happening? This lease read is helping us or is performing the function of leasing. जब हम बीम बनाते हैं और जो वार्पिंग मशीन का जो ड्रम होता है, जब आप वार्पिंग पढ़ेंगे तब मैं वापस इसको आपको क्लियर करूंगा. जब वार्पिंग पे ड्रम के ऊपर जब हम सेक्शन वाइज वार्पिंग कर रहे होते हैं तो उस समय क्या करते हैं, उसके पहले लीज रीड होती है और लीज रीड अप एंड डाउन मूवमेंट कर सकती है. और उसमें जो हम डेंट्स ले रहे हैं या उसका जो साइज ले रहे हैं, हम इस तरह से लेते हैं कि एक डेंट पूरा ओपन होता है, एक डेंट बंद होता है, एक डेंट पूरा ओपन होता है, एक डेंट बीच में बंद होता है. वो क्या करता है, जब लीज रीड को हम ऊपर की तरफ मूव करते हैं तो कुछ थ्रेड्स तो पूरा ऊपर मूव कर जाते हैं, कुछ थ्रेड्स जहां बंद है वहां तक ही रुक जाते हैं, तो उनके बीच में गैप क्रिएट रहता है और वहां पे हम लीज थ्रेड्स इंसर्ट करते हैं. नंबर ऑफ थ्रेड्स को साथ में थोड़ा सा रख करके हम उनको उसके अंदर से डाल देते हैं, क्योंकि हमें ड्रम के ऊपर वार्प थ्रेड्स को वाइंड करना है, तो वहां पे हम रोड्स नहीं डाल सकते हैं. तो क्योंकि रोड्स रिजिड चीज है और थ्रेड्स जो है वो फ्लेक्सिबल है, तो बीम पे हमें वाउंड करना है यार्न को,
इसलिए हम वहां पे क्या करते हैं, लीज थ्रेड्स डाल देते हैं। फिर जब ये लीज थ्रेड्स डाल के जब पूरा बीम बन गया है, और जब हम इस बीम को या तो ड्राइंग इन मशीन पे या लूम पे जब माउंट करते हैं, तो उस समय हम क्या करते हैं, जब उसको अनवाइंड करते हैं बीम को हिल फ्रेम से या रीड से पास करने के लिए या फैब्रिक बनाने के लिए, उस समय पे हम लीज थ्रेड्स को निकालते जाते हैं एक तरफ से, और दूसरी तरफ से लीज रोड्स को इंसर्ट करते हैं उस गैप के बीच में। तो गैप, वो जो गैप अपने वहां क्रिएट किया था, उस समय हम लीज रोड्स नहीं डाल सकते, इसलिए हमने वहां पर लीज थ्रेड्स डाल दी जो कि फ्लेक्सिबल है। और जब लीज थ्रेड्स को निकालते हैं तो उस निकालने के साथ ही एक साइड से उसको अगर निकाल रहे होते हैं तो दूसरी साइड से उस गैप में हम रोड्स को इंसर्ट कर देते हैं। इन दैट वे वी आर इंसर्टिंग लीज रोड्स ऑन लूम और ऑन वार्पिंग, ऑन ड्राइंग इन मशीन. This was all about lease roads. If you have any question, you can ask anytime. These type of roads are there, or you can see the tips are there, so they can easily insert in the division of warp threads. क्योंकि यहाँ पे डिवीजन वैसा नहीं होता जैसा शेड में होता है। शेड में काफी बड़ा डिवीजन बनता है, लेकिन यहाँ पे छोटा सा डिवीजन बनाते हैं हम। उस डिवीजन के अंदर से इस तरह की जो पतली सी रोड्स होती हैं और आगे से टिप्स होती हैं, तो जब हम थ्रेड को बाहर निकाल रहे हैं तो इस टिप को अंदर इंसर्ट करते जाते हैं, तो साथ के साथ ये इंसर्ट होगी और वो लीज थ्रेड्स जो हमने वार्पिंग में डाली थी उनको हम बाहर निकाल लेते हैं। Then another important part of loom is temple. मैं वीडियो बंद कर रहा हूँ, इधर दिखाई नहीं देता है। Due to interlacement of the warp and weft threads, the cloth contracts in width. जब वार्प और वेफ्ट इंटरलेस करता है तो जो क्लॉथ है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, क्योंकि हमने वार्प को पहले स्ट्रेट लिया हुआ है, अब उसी लेंथ को हम बेंड कर रहे हैं, लेकिन विड्थ हम मेंटेन रखना चाहते हैं। जो भी विड्थ है, सपोज 65 इंच विड्थ है, तो अगर हम बेंड करेंगे थ्रेड्स को तो उसकी टेंडेंसी होगी विड्थ वाइज कॉन्ट्रैक्ट होने की। तो अगर वो विड्थ वाइज कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से वार्प मुड़ जाएगा, पर्टिकुलरली एट द सेल्वेज, और अगर रीड मूव करेगी तो उन वार्प थ्रेड्स को डैमेज करेगी। तो वार्प थ्रेड्स स्ट्रेट रहने चाहिए, विड्थ वाइज कॉन्ट्रैक्ट नहीं करने चाहिए। तो उसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं होने देने के लिए, उस कॉन्ट्रैक्शन को प्रिवेंट करने के लिए हम सेल्वेज के पास में से जहां फैब्रिक फॉर्मेशन होता है, फेल ऑफ द क्लॉथ के यहाँ पर विड्थ वाइज हम टेम्पल्स लगा के रखते हैं, जिसके अंदर हम इन फैब्रिक को होल्ड करके रखते हैं ताकि फैब्रिक विड्थ वाइज कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो। इट इज नॉट कंट्रास्ट, इट इज कॉन्ट्रैक्ट। प्लीज करेक्ट द स्पेलिंग, कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे सी आएगा एस की जगह, कॉन्ट्रैक्ट। द टेम्पल प्रिवेंट्स दिस कॉन्ट्रैक्शन बाय एक्सटेंडिंग द विड्थ ऑफ द क्लॉथ, यानी कि वहां पे वो स्ट्रेच करके या होल्ड करके रखता है, तो उस विड्थ को एक्सटेंड करके रखता है ताकि यहाँ पर फैब्रिक विड्थ वाइज कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सके, and prevents the reed from being damaged by the selvage ends and the selvage ends by the reed, ताकि selvage ends भी reed से डैमेज नहीं हो और selvage ends की वजह से भी reed के जो वायर्स है वो डैमेज नहीं हो। इसको प्रिवेंट करने के लिए हम टेम्पल यूज करते हैं, जो कि फैब्रिक को विड्थ वाइज कॉन्ट्रैक्शन को प्रिवेंट करता है, उसको होल्ड करके रखता है फैब्रिक को एजेस के ऊपर, सेल्वेज के पास में लगे रहते हैं और फेल ऑफ द क्लॉथ के बिल्कुल पॉइंट, फेल ऑफ द क्लॉथ पर लगे रहते हैं। तो जहां फैब्रिक बनना स्टार्ट हुआ वहीं फैब्रिक को ये स्ट्रेट करके रखेंगे। फैब्रिक को अगर हम स्ट्रेट करके या होल्ड करके रखेंगे तो वार्प थ्रेड्स जो हैं, सेल्वेज के अंदर जो थ्रेड्स हैं या सेल्वेज के पास में जो वार्प थ्रेड्स हैं, वो भी स्ट्रेट रहेंगे। और वो अगर स्ट्रेट रहेंगे तो रीड के द्वारा वो डैमेज नहीं होंगे और उनके द्वारा रीड के वायर्स डैमेज नहीं होंगे। एंड दैट इज पर्पस ऑफ टेम्पल। द टेम्पल इज एन इम्प्लीमेंट, टेम्पल एक इंस्ट्रूमेंट या इम्प्लीमेंट होता है, कंसिस्टिंग ऑफ 2 पीसेज ऑफ वुडन और मेटल बार्स। इसमें 2 मेटल बार्स होती हैं विथ पिंस हिंज्ड एट 2 अपोजिट एंड्स, और दोनों उसके अंदर पिंस होती है रोलर के अंदर, वो पिंस अपोजिट एंड्स के ऊपर हिंज्ड रहती हैं। तो ये जो पिंस हैं, ये सेल्वेज पोर्शन जो है, जो वार्प की जो एजेस हैं, फैब्रिक की जो एजेस हैं, वहां पर उसके अंदर इंसर्ट हो जाती है पिंस, और ये पिंस इंसर्ट होने की वजह से वो फैब्रिक कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता। इसलिए जब आप कभी फैब्रिक देखेंगे थोड़ा सा लूम के ऊपर, तो आपको वहां पर फैब्रिक जब बीम पे होगा, उस पे आपको जो सेल्वेज हैं उसके आसपास थोड़े थोड़े डॉट नजर आएंगे, छोटे छोटे बिल्कुल माइन्यूट होल्स नजर आएंगे,
those are due to these pins, क्योंकि pins उसमें insert कर रही है. But after processing it removes, क्योंकि processing के बाद fabric का contraction होता है और जो भी इस तरह के मार्क है वो ऑटोमेटिक कंपनसेट होकर के रिमूव हो जाते हैं. दिस इज अबाउट टेम्पल. टेम्पल का डायग्राम आप यहाँ पे देख सकते हैं. इस तरह से इसमें पिन्स होती हैं जो कि फैब्रिक के अंदर इंसर्ट हो जाती है थोड़ा सा और उसको होल्ड करके रखती है, कॉम्पैक्टली उसको होल्ड करके रखती है ताकि फैब्रिक कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सके. समझ में आया आपको? टेम्पल के बारे में समझ में आया? Particularly regular students, if you have any confusion, please ask. और डिप्लोमा स्टूडेंट्स भी पूछ सकते हैं अगर कहीं वो भूल गए हैं या वहां पर ढंग से नहीं पढ़ा है या जो भी रीजन रहे हो, यू कैन ऑल्सो आस्क. बट रेगुलर स्टूडेंट्स का फोकस मैं ज्यादा चाहूंगा क्योंकि उनके लिए बिल्कुल नया है सारे टॉपिक्स. दे आर हियरिंग फर्स्ट टाइम ऑल दीज टर्म्स. सो इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन, बिकॉज वी आर गोइंग थ्रू बेसिक्स, वी आर गोइंग थ्रू फंडामेंटल्स, यू कैन क्लेरिफाई any doubt if you have. Salvages. The warpway strips which forms both the edges of a piece of cloth are known as salvages. इसको आपको पहले डायग्राम दिखाता हूं तो आपको समझ में आएगा. ये पूरा फैब्रिक है विड्थ वाइज, तो ये जो इसकी एज है इसको हम बोलते हैं सैल्वेज. ये दोनों तरफ होगी, दोनों साइड में होगी. सिमिलरली हियर यू कैन सी दिस वन, दिस एज, यहाँ इस पॉइंट से लेकर जो कलर्ड है यहाँ तक ये पूरा है. और ये जो पार्ट है ये भी सैल्वेज का पार्ट है जिसके ऊपर हम कंपनी का नाम लिखते हैं, उसको बोलते हैं मोनोग्राम. लाइक BSL शूटिंग्स, विमल शूटिंग्स, रेमंड शूटिंग्स, जो भी कंपनी का ट्रेडमार्क है या उसका नाम है वो यहाँ पर वीविंग के थ्रू ही लिखा हुआ होता है. वी आर यूजिंग जैकार्ड फॉर दिस एंड उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे एक नेम राइटर या जैकार्ड यूज करते हैं जो कि यहाँ पर उसका नाम लिख रहे हैं. जैसे यहाँ पर इसमें लिखा हुआ रेमंड, ये रेमंड का फैब्रिक है. तो इस तरह से ये मोनोग्राम होगा और बाहर की तरफ जो है वो भी सैल्वेज का रिमेनिंग पोर्शन होगा. एंड इस यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है दैट इज नोन एज सैल्वेज. ये इसका बैक साइड से दिख रहा है, ये वापस फ्रंट साइड से फैब्रिक दिख रहा है. तो थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे कंपनी का नाम होता है सो दैट यू कैन नो विच कंपनी हैज प्रोड्यूस्ड दिस फैब्रिक. तो ये जो और ये दोनों साइड होगा, ये एक ही साइड नहीं, फैब्रिक की दूसरी साइड में भी होगा. तो दोनों जो एजेस है वहां पर जो होता है उसको हम सैल्वेज बोलते हैं. द वार्फवे स्ट्रिप्स, वार्फ वाइज होती हैं स्ट्रिप्स, डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट एंड डिपेंडिंग ऑन द मैन्युफैक्चरर. It is generally ranging between 1/2 inch to 3/4 inch or sometimes up to 1 inch. 1/2 to 1 inch at one side, 1/2 to 1 inch at one side. But generally when we are using a salvage with monogram of company, then it is having width 3/4 inches. Generally in the industry, 3/4 inches width is used with monogram and 1/2 inch without monogram. But in special cases, we can go up to 1 inches also. And also we can go up to 1/4 inches also, depending on the manufacturer and industry and the final requirement. It serves following purposes. Salvage के purpose हैं, हम salvage क्यों रखते हैं? To bind at least one of the extreme outer ends with the weft for preventing fraying of the cloth. क्या मीनिंग हुआ इसका? कोई स्टूडेंट बता सकते हैं? एनी स्टूडेंट? टू बाइंड एट लीस्ट वन ऑफ द एक्सट्रीम आउटर एंड्स विद द वेफ्ट फॉर प्रिवेंटिंग फ्रेइंग ऑफ द क्लॉथ. फ्रेइंग मीन्स जो थ्रेड्स बाहर निकल जाते हैं फैब्रिक में से या कुछ उसके कुछ छोटा सा एंड भी उसमें से बाहर निकल रहा है, उसको हम फ्रेइंग बोलते हैं. तो उसको रोकने के लिए जो लास्ट 1 और 2 एंड्स हैं उनमें से किसी एक को हम बाइंड कर लेते हैं अंदर की तरफ वेफ्ट के साथ में, ताकि वो बाहर की तरफ फ्रे आउट नहीं हो. टू प्रिवेंट दैट वी बाइंड एट लीस्ट वन ऑफ द एक्सट्रीम आउटर एंड्स विद द वेफ्ट. Second is to provide extra strength in the region
where the cloth is pulled by clips or abraded in the subsequent finishing processes or use. You can understand this with one example. One machine we are using in finishing, that is stentor. तो उस टेंटर के ऊपर हम फैब्रिक को होल्ड करने के लिए फैब्रिक की एजेस के अंदर पिंस इंसर्ट करते हैं, उसको विड्थ वाइज होल्ड करके रखने के लिए. तो विड्थ, वो जो पिंस हम इंसर्ट कर रहे हैं उसकी वजह से फैब्रिक की थोड़ी एब्रेजन या एब्रेडिंग होगी. तो इन क्लिप्स या पिंस से जो एब्रेड होता फैब्रिक, जो फैब्रिक घिसता है या फैब्रिक को जो डैमेज हो सकता है, उसकी वजह से हम क्या करते हैं, जो एजेस हैं फैब्रिक यानी कि जो सेल्वेज हैं, उसको एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं एज कंपेयर टू बॉडी ऑफ द क्लॉथ. इट इज ऑलमोस्ट 1.5 टाइम्स स्ट्रेंथ एज कंपेयर टू बॉडी ऑफ क्लॉथ, एंड दैट इज डन बाय इंक्रीजिंग वार्प डेंसिटी और वेफ्ट डेंसिटी, पर्टिकुलरली इन द सेल्वेज रीजन. वो कैसे बढ़ाते हैं हम, दैट वी विल डिस्कस लेटर ऑन. तो इसलिए एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करनी होती, सो दैट इट कैन विथस्टैंड द फोर्सेस व्हिच आर अप्लाइड ऑन देम during subsequent finishing processes. Third one is to provide ends capable of withstanding the greater abrasion by the reed occurring at the edges of warp. जितना जितना हम बाउंड्री पे, जैसे आप अपनी कंट्री से कंपेयर करें तो अंदर की तरफ हम सेफ है, लेकिन जो हमारी बाउंड्रीज पर हैं, बॉर्डर्स पे जो लोग हैं, दे आर नॉट सेफ. तो बॉर्डर्स पे इसीलिए हम लोग आर्मी लगाते हैं. तो बॉर्डर शुड बी स्ट्रॉन्ग. सिमिलरली हियर द बॉर्डर, द बाउंड्री ऑफ द फैब्रिक शुड बी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि वहां पर जो एब्रेजन है थ्रेड्स के ऊपर ज्यादा होगा एज कंपेयर टू बॉडी थ्रेड्स, एंड दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग दिस salvages. एंड लास्ट इज टू प्रोवाइड स्पेस फॉर आइडेंटिफिकेशन. मोनोग्राम के लिए स्पेस प्रोवाइड करना, दैट इज द लास्ट ऑब्जेक्ट पर्पज ऑफ सैल्वेज. कि कोई कंपनी अगर अपना मोनोग्राम उस पर लिखना चाहती है तो वो स्पेस भी सैल्वेज के ऊपर ही होगा. बॉडी के अंदर हम कुछ भी नहीं करते, केवल सैल्वेज में. और जब हम फैब्रिक बनाते हैं तो सैल्वेज उसमें से कट हो जाती है. तो हमें बॉडी में हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम कंपनी का अगर कोई नाम लिखना है, हमें मोनोग्राम बनाना है, तो हम उसके लिए सैल्वेज वाला स्पेस ही यूज करते हैं. सो दिस इज द डायग्राम. यहाँ पर विदाउट मोनोग्राम दिखाया है, अराउंड 1/2 इंच विड्थ लिया, और यहाँ पर विद मोनोग्राम दिखाया है. दोनों तरह की सैल्वेज आपको दिखाने की कोशिश की है with the help of these two diagrams. So in this way we have completed all the important parts of loom. So once again we will go through this topic. We will revise it fast. So if you have any question you can ask, और the students जिन्होंने बीच में कहीं मिस किया है या पहले अटेंड नहीं किया है, तो it will be beneficial for them. So here we have started our subject, Principle of Textile Manufacturing second, with the definition of weaving. Weaving is the process by which weft is interlaced with the warp to produce a woven fabric on a machine called loom. Then we have done classification of weaving machine. Broadly, we have divided into shuttle looms and shuttle lace looms. Then further classification. Then we have taken basic mechanisms of plain loom, in that classification of motions, primary motions, secondary motions, auxiliary motions. Then passage of warp on loom, starting with weaver's beam, back rest. This is drop pins, part of warp stop motion, hill frames, reed, shuttle, fell of the cloth, front rest. This is tack up roller, this is nip roller or tension roller, and this is cloth roller. Here we have shown a particular type of mechanism, shedding mechanism, which is known as tapered shedding mechanism. Here we have shown the beating up mechanism with sleigh race, sleigh rods, sleigh swords, and rocking shaft. Then we have taken a diagram to indicate how the loom shafts are arranged and how the motion is transmitted to the loom shafts. So two important shafts we have taken, crank shaft and bottom shaft, and one auxiliary shaft, another shaft we have taken, which is used only for tapered shedding looms, tapered shaft. And if the tapered required is more than 2, only then we require tapered shaft. If tapered required is only 2, just like for plain weave,
then there is no need of tappet shaft. We can mount the tappets directly on the bottom shaft. Then I have tried to show you how the different parts of loom and how the fabric formation taking place on the loom with the help of this 3D diagram, where we have taken this weaver's beam, back rest. Sorry, this is from this side. This is the back side. So this is weaver's beam, this is back rest, and these are the heel frames. This is reed, this is shuttle, and here the fell of the cloth where actual fabric formation starts, imaginary point, and then this is converted into fabric, and this fabric is now guided from this front roller, which is known as front rest, and then wound onto the cloth beam. So with the help of this diagram, it will be more clear the passage of warp on loom. Then this is another diagram of loom we have shown, shuttle loom. Another shuttle loom. This is with tappet shedding mechanism, and this is with Dobby shedding mechanism. In general terms, we have taken warp and weft. Heel shaft, very important part of loom, which is performing the performing a very important function of loom to form the fabric, that is shedding. So shedding is performed by heel shafts in case of tappet and Dobby shedding mechanisms. In case of Jacquard shedding mechanism, we are individually controlling the warp threads, so there is no need of heel shaft, because heel shaft controls the warp threads in a group. Thousands of threads are lifted and lowered together with the help of heel shaft, because it is having number of heel wires according to our requirement. And its functions, the diagram indicating heel frame, and so number of heel wires are shown, and in the middle heel eye is shown. And here the heel wires are not fixed. We can increase and decrease the number of heel wires. Then reed, similarly as heel frame, it is also an important part of this loom, and which is having a very important role in deciding the warp density. So here we have taken the functions. The main function is beat up the last peak of weft to the fell of the cloth and decides the warp density. How it decides the warp density means ends per inch, that we have taken with one example also. I have taken the example in your class. How we decide warp density or ends per inch in the fabric with the help of reed. मैंने लिया कुछ example numerical. Priyadarshini? Yes, sir. We have taken one example of reed count and how we calculate EPI. Okay, and here I have shown reed along with heel frame. So मैंने डिफरेंस भी आपको बताए थे. इसका जो हाइट होता है काफी ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू दिस. इस डायग्राम में नहीं है, इस डायग्राम में इतना क्लियरली शो नहीं हुआ है, बट हिल फ्रेम की जो हाइट होती है रीड से काफी ज्यादा होती है. और इसके अंदर जो वायर्स होते हैं उसके अंदर बीच में ओपनिंग होती है जिसको हम हिल्ड आई बोलते हैं, और इसमें जो वायर है उसके अंदर कोई ओपनिंग नहीं होती है. और यहाँ पर हम जो थ्रेड पास करते हैं वार्प थ्रेड, वो इस आई के थ्रू पास करते हैं. And here the number of wires can be increased and can be decreased. They are not fixed according to requirement. We can increase and decrease number of wires. हम ज्यादा इसमें wires डाल भी सकते हैं और इसमें से निकाल भी सकते हैं. But reed के अंदर wires fix होते हैं और यहाँ पर आई नहीं होती है. यहाँ पर हम दो जो wires हैं उसके gap को हम dent बोलते हैं और warp threads को हम इस dent के बीच में पास करते हैं. यहाँ पर हम एक ही most of the time generally we are passing one warp thread from one hill eye. पर यहाँ पर हम 1, 2, 3, 4, 5 depending on our requirement and our specifications of reed and warp threads, we can pass threads more than one or more than one thread can be passed through this dent of reed, this gap between two wires of reed, and that is known as ends per dent, which is also known as denting order. Denting order means how many ends are passing through each dent. The order of passing the ends through the dents of reed is known as denting order. यानी कि जितने ends हम पास करें that will be denting order. आपने 2 ends पास किए तो denting order will be 2. आपने 3 ends पास किए तो denting order will be 3. Generally we are using regular denting orders, but in some special cases we go for irregular denting orders also.
one more slide I have added, which was not in the last class, read specifications. ये मैंने explain तो किया था, लेकिन इसका slide मैंने last time present नहीं किया था. So this is a new slide. Read is specified by two things, which I have explained earlier. One is read count and another is read width. तो जो read है, इसमें दिखाया नहीं, रीड का जो अपर पार्ट है वहां पे थोड़ा सा स्पेस होता है और नीचे भी थोड़ा स्पेस होता है. यहाँ पे केवल एक लाइन दिखाई, लेकिन यहाँ पे एक स्पेस होता है. और इस जो ये स्पेस है, इसके सेंटर में यहाँ पर दो नंबर्स लिखे रहते हैं. लाइक मैंने बताया था 36 into 65. फर्स्ट नंबर इज इंडिकेटिंग रीड काउंट. फर्स्ट नंबर लाइक 36 अगर लिखा हुआ तो फर्स्ट नंबर पे अगर 36 लिखा हुआ, इसका मतलब रीड काउंट 36 है. और सेकंड नंबर जो इंडिकेट कर रहा है वो रीड विड्थ को, और वहां पर उसकी यूनिट भी उसके ऊपर एनग्रेड होती है. एंड जनरली वी आर यूजिंग इंचेस. सो व्हाट इज रीड काउंट? ऑलरेडी आई हैव टेकन द डेफिनेशन, बट जस्ट रिपीटिंग. नंबर ऑफ डेंट्स पर यूनिट लेंथ, यहाँ पे लेंथ और लिख लें, नंबर ऑफ डेंट्स पर यूनिट लेंथ. यहाँ एक जनरल डेफिनेशन लिया मैंने. देन आई एम टेकिंग ए डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू मोस्ट वाइडली यूज सिस्टम, दैट इज नोन एज स्टॉकपोर्ट सिस्टम. मैंने यहाँ पे SPS लिखा, इसके फुल फॉर्म होता है स्टॉकपोर्ट सिस्टम. According to Stockport system, there are various systems of read count, but the most important and most widely used system is Stockport system, and it defines read count as number of dents per 2 inch. So, for example, if एक read के ऊपर लिखा हुआ 36 into 65, इसका मतलब भी हुआ there are 36 is the read count. It means there are 36 dents in 2 inch. 2 इंच में 36 हैं, यानी कि 1 इंच में 18 डेंट्स होंगे. That is the meaning of read count. And read width of the read from first to last dent. पहले डेंट से लेके लास्ट डेंट तक जो width होती है उसको हम बोलते हैं read width, and it is generally measured in inches. Generally हम इसको inches में measure करते हैं. तो for example, if it is written 36 into 65, it means 36 is the read count and 65 inches is the read width. If it is written like 48 into 60, it means, yes, any student? If it is written 48 into 60, what does it mean? Sir, 48 read count and 60 read width. Inch is the read width and 48 is the read count. Very good. And 48 read count means? Arpita, 48 read count means? For any student? Stopcoat में, Yes, yes, yes. stopcoat में, हाँ, stopcoat में सर 2 dents मतलब 1 इंच में 2 इंच में 48 dent रहेगा. Don't make any confusion. जो भी read count दिया है, उस अगर 48 दिया, it means 48 dents per 2 inch are there. It means 24 dents per inch is there. So for example, if I give you a read equal to 48 into 60 inch, note down, a read is given that is 48 into 60 inch. 48 is the read count and 60 inch is the read width. And if we are passing 3 ends per dent, means the denting order is 3. Then what will be the EPI and total number of ends on the weavers be? What will be the EPI and total number of ends on the weavers be? बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है, इसलिए आप जल्दी से करके बताएं मुझे. क्वेश्चन समझ में आया? Read count is 72, sir. Yes. 72 EPI. Very good. Yes, EPI is 72. कैसे कैलकुलेट किया आपने? सर 24 ends 24 dents per inch हो गए सर, उसका 24 into 3 कर दिया सर, तो 72. 24 कहाँ से आया? सर 48 आपने बताया था ना, 48 स्टॉकपोर्ट सिस्टम. Yes, yes. 48 into 60. 48 divided by 2, क्योंकि 48 2 Yes, इंच के sir. अंदर है.
सो अगर फॉर्मूले में इसको बनाना चाहें तो रीड काउंट डिवाइडेड बाय 2 इनटू एंड्स पर डेंट, दैट विल गिव यू ईपीआई। यही आपने किया है। 48 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 24 मल्टीप्लाइड बाय 60, सॉरी वो बाद में करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 3, तो ये हो गया आपका ईपीआई। ईपीआई कितना हो गया 72। अब 1 इंच में अगर 72 एंड्स है तो 60 इंच में कितने होंगे, दैट यू कैन कैलकुलेट। 1440. So it means in this way we can calculate ends per inch as well as total number of ends on the weaver's beam if read count and read width is given. I think that's all. बाकी टॉपिक्स हम पहले कर चुके हैं, आपको जस्ट मैं आपको शो कर रहा हूँ कि हम क्या क्या कर चुके हैं।